Hello everyone. Today we are again going to study the chapter that we were continuing in the earlier class, that is India size and location. We had already covered first half of the chapter, which was given as in form of introduction, given in the form of latitudes and longitudes, the concepts that we had discussed earlier, right? Today we are going to continue with another part of the chapter, that is we are going to study today about India's size, alright? In the previous class, we had studied about India's location. I told you some of the basic facts regarding India's location. First basic fact that we discussed about identifying location is the concept of latitudes and longitudes. Alright, these are sets of two imaginary lines which are drawn on the globe for different purposes. Like the first one, that is the horizontal line, which are known as latitudes, were used for identifying heat zones on the earth. Like we had discussed earlier, there were three kinds of heat zones which we had identified. First one was torrid zone, the second one was temperate zone, and the third one was frigid zone. The second point for which these latitudes are used is for identifying climate of any place. Like I had given you an example earlier, that suppose I want to go to a place. Now I do not have access to any kind of information and I want to know what kind of climate will be there around that time. If I know the latitudinal extent of that place, it would be easier for me to pack my bags and go there. So for this purpose, the concept of latitudes is used. The another concept that we had discussed is the concept of longitudes. What we had read so far in the concept of longitude is, first, we had discussed about time. Alright, for identifying time of any place, we need to know the longitudinal extent of that particular place. Like India lies between the latitudes of 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. What does this latitudinal extent have an impact on India? We roughly lie between 30 longitudes and the sun rays takes a time period of 4 minutes to shift from one to another. So approximately if we calculate, there will be a time difference of 120 minutes of 2 hours between these three longitudes. But we do not find any such time difference while we are experiencing it. Why is it so? This is because of the concept that has been set because of this longitudinal extent, that is by fixing it through standard meridian of any place. So we had fixed time of our country through standard meridian of India, which passes through 82 degrees 30 minutes east first of all. Second, it passes through Mirzapur in UP. And third, why we are taking this particular longitude only for standard meridian of India, there are two reasons which are specified. The geographers do not use any abstract reason for this. इसके पीछे दो कारण हैं कि हमने इसी longitude को standard meridian of India क्यों बोल रखा है. The first reason is that this meridian, which has been taken as the standard one, should be exactly divisible by 7 degrees and 30 minutes. The first reason. And the second reason is it almost passes through center of the country. We cannot say exact center, but it approximately passes through center of the country. So these are two reasons because of which we had selected this meridian as standard meridian of India. Moving on further, in today's class, what topics are we going to cover? The first topic that we are going to cover is facts related to India's size. Very important. The first thing or first topic that we are going to start with is India's size. If we move on to size of India, most of us might be knowing what is the boundary of India, what does India has in location, or what is the size of India. Let us first understand what does this mean. If we look at the size, the total area which our country occupies is, the total area is 3.28 million square kilometers. Alright, if we look at
the geographical share which our country occupies with proportion to other countries, the geographical share of total boundary of India is approximately 2.4% of the total geographical area. Right. If we talk about ranking according to area wise, we are supposed to know our country's position, which is an important question which can be asked. And the second important thing that we need to remember is that what is the area of first country, which is having the highest area covered, and if we do not know the exact figure, does not matter, we should know which country occupies the first position. So with respect to area, we have 7th position, or we are 7th largest country in the world. Plus, who is having the first position with respect to area? That is obviously Russia, who is having the first position with respect to coverage of area, right? What else do we need to know about India? There are some more interesting facts left that we need to know. The first, another important fact, first of all, we are a country whose structure is rhombus shaped structure. Why do I call it a rhombus shaped structure? The reason is, if you remember in the last class, when I had drawn a globe and while locating India, I had drawn a kite-like structure, right? That was not something which was drawn abstractly. उसके पीछे एक रीजन है कि हम उसको उस स्ट्रक्चर से क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं. I had earlier told you in the previous class that we have 4 points, north, south, east, west. In all the 4 directions, we have 4 joints, and if we connect these joints, whatever structure we get resembles like a rhombus. So for this reason, India is called a rhombus shaped country, right? Another thing that we need to know about India is that what is the land boundary of India? The land boundary of India is 15,200 kilometers. Now here we are not including the coastline of India. We already know this fact that we are surrounded by water on 3 sides. That is, we have the longest coastline, right? So here, while we are including this area, we are not including the area of coastline. Here we are only and simply referring to the land boundary of India. Moving on further, if we add up the coastline of India with 2 island groups, it comes out to be 7516.6 kilometers. If I want to exclude it, although this is not mentioned in our NCERT, but if suppose someone asks you that what about the coastline of India without these island groups? So if we count it without island groups, it comes out to be 6100 kilometers. This is without islands. Alright, we should remember here, हम जब भी इस कोस्ट लाइन को रेफर कर रहे हैं तो इस कोस्ट लाइन की रेफरेंस हमें आगे वाले टॉपिक्स में भी काम आएगी. द रीजन इज दैट दिस कोस्ट लाइन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच वॉज यूज्ड अर्लियर इन द एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स. रादर टू से, not in ancient and medieval times also, when Britishers came to India, this coastline only proved to be a boon for them. यही कोस्ट लाइन थी जिसकी वजह से उनको भारत में एंट्री मिल पाई, और यही कोस्ट लाइन थी जिसका फ़ायदा उठाकर वो बहुत इजीली इंडिया में ट्रेड कर पाए. तो यहाँ पर जब हम कोस्ट लाइन की लेंथ रेफ़र कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत की कोस्ट लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है कि इस कोस्ट लाइन की मदद से बाकी सारे यूरोपियन देशों को बहुत बड़ा मौका मिला कि वो यहाँ पर आकर और यहाँ की चीज़ों में ट्रेड कर सकें. चीज़ें
कैसी होनी चाहिए या किस टाइप की कमोडिटीज़ में ट्रेड किया जाता था। फॉर दिस फर्स्ट वी नीड टू रिमेंबर कि हमारे कनेक्शन वर्ल्ड के साथ कैसे रहे, हम वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी कैसे बना के रखते थे। सो फॉर दिस वी मूव ऑन टू द अदर टॉपिक दैट व्हाट वाज इंडियाज कनेक्शन विद द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड की बात करो तो हमारे पास वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। हम हमेशा जब भी कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन की बात करते हैं तो हम लोकेशन के एस्पेक्ट में हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम हर चीज़ को एग्जामिन करते हैं। जैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस जगह पर कैसा क्लाइमेट रहता है, कितना टाइम डिफरेंस रहता है, वो क्या चीज़ों को ग्रो करने के लिए फेवरेबल है, क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हम अपनी लोकेशन देखते हैं तो हमें ये चीज़ पहले पिछली क्लास में भी मैंने बताई थी कि ये चीज़ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था या एडवांटेज था कि जो हमारी लोकेशन है वो लोकेशन एक्चुअली बहुत स्ट्रैटेजिक रही है, और ना सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कमोडिटीज़ के लिए, इट हैज़ ऑल्सो बीन बेनिफिशियल फॉर वॉट एवर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैड बीन डन थ्रू एजेस। हमारे पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के कि हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ इंडिया से गई, ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया भारत से हुआ, ये कमोडिटी का एक्सचेंज भी इंडिया से ही हुआ है। सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स थ्रू विच वी कैन प्रूव आवर कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड। बट ये कनेक्टिविटी इन्हांस और कैसे हो गई, या ये कनेक्टिविटी बढ़ी कैसे और, एंड दिस इंटरकनेक्टेडनेस ग्रू मोर विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, हम लोग मेजरली जिन देशों से कनेक्शन बनाने की बातें करते हैं तो हमारा कनेक्शन मेजरली रहा है दैट इंडियाज कनेक्शन विद द वर्ल्ड नाउ विद यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। We lie in Southeast Asian country. We are a Southeast Asian country. तो हमारे कनेक्शन वर्ल्ड के साथ, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के साथ तो हमेशा ही फेवरेबल रहे हैं सिंस द वेरी प्रीवियस टाइम। अगर हम 9th क्लास में ही आगे और इन चीज़ों को कवर करें तो हमें पता लगेगा कि अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इन तीनों जगह पर क्या चीज़ें थीं जो फेवर करती थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड की कनेक्टिविटी बढ़ती गई। प्लस व्हेन वी टॉक अबाउट अर्लियर टाइम्स, जब कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, व्हेन देयर वाज नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, एयर रूट्स नहीं थे, देयर वाज नो रेलवेज, और अगर रेलवे थे तो उनका एक्सपेंशन भारत तक नहीं हुआ था। अगर हम और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रोडवेज, तो दैट वाज नॉट फीजिबल। क्या चीज़ थी जिसके थ्रू ये वर्ल्ड की कंट्रीज़ कनेक्टेड रहना चाहती थी? वर्ल्ड की कंट्रीज़ बेसिकली कनेक्टेड रहना चाहती थी वाटरवेज के थ्रू। पर पानी से आना, एक बहुत लंबी वोएज ट्रैवल करना, एक बहुत लंबा सफ़र ट्रैवल करना, ऑफन हो सकता है कि हम जिस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं उस चीज़ का भी लॉस हो जाए। जो कमोडिटी को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, अगर वो पेरिशेबल नेचर की हो तो वो चीज़ भी ख़राब हो सकती है। हमें ये डिस्टेंस को रिड्यूस करने की ज़रूरत थी, इस डिस्टेंस को कम करने की ज़रूरत थी। तो हमने इस डिस्टेंस को रिड्यूस कैसे किया? कनेक्टिविटी मेनली चाहिए थी एशिया की, किसके साथ? यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, क्योंकि जहाँ पर अधिकतर चीज़ें ट्रांसपोर्ट करी जाती थी या जहाँ पर अधिकतर चीज़ें भेजी जाती थी वो यही 2 कॉन्टिनेंट्स थे। हमारा लिंक तो ऑब्वियसली बहुत डायरेक्ट बन रहा है कि वी वर अ कॉलोनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग उस समय कॉलोनी थे, तो हम लोग कॉलोनी के थ्रू जितनी भी चीज़ें इंपीरियलिज्म ट्रेडिंग के थ्रू जाती थी तो वो सब चीज़ें वाटरवेज के थ्रू ही ट्रैवल करेंगी। तो यूरोप से कनेक्टिविटी तो हमको ईज़ पर लेकर आनी थी, बहुत नज़दीक लेकर आनी थी। हमने इन तीनों जगहों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया? देयर वॉज एन एडवांस्ड सिस्टम विच वॉज drawn up so that connectivity of the world shrinks। मतलब वर्ल्ड जो है वो कनेक्शन के थ्रू क्लोज आता जाए, एंड दिस क्लोजनेस कुड बी अटेन्ड विद द बिल्डिंग अप ऑफ
Suez Canal, which reduced the distance by 7,000 kilometers between all the 3 continents of the world, right? हमारे को अमेरिका में यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट रेफ़र करना है वो मेनली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, जहाँ से हमारा ये जो बिल्डिंग ऑफ स्विस कैनाल था इसने डिस्टेंस को 7,000 किलोमीटर्स तक कम कर दिया. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप विच वॉज टेकन ओवर हियर. यहाँ पर हम ना सिर्फ कमोडिटीज़ के एक्सचेंज को रेफ़र कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें उपनिषद के बारे में, जो अपनी एपिक्स थी, रिलीजियस एपिक्स थी, रामायण के बारे में, यहाँ तक कि इंडिया में मैथमेटिक्स के फील्ड में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है. जैसे डेसिमल सिस्टम जो था, वो डेसिमल सिस्टम भारत की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर किया गया. जो नंबर 0 है, जिसके ऐड होने और घटने से बहुत बड़ा नुकसान या फ़ायदा होता है, ये जो नंबर है, ये नंबर भी एक्चुअली भारत की ही देन है. तो हमारे पास ये सिर्फ ना कमोडिटीज़ के पर्पस से हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं कि बाकी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम पर वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए. ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक ही जगह पर था, डेवलपमेंट सब जगह पर हो रहा था, बट वी शुड ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ अदर्स डेवलपमेंट फॉर आर बेटरमेंट. हमें ये चीज़ बेहतरी की तरफ लेकर जानी चाहिए कि हम दूसरी जगह का डेवलपमेंट अगर इनकॉर्पोरेट कर पाएँ तो दैट विल बी अ मोर बेनिफिशियल और प्लस पॉइंट फॉर अस. यही चीज़ प्लस पॉइंट की तरह से एक्ट करी जब लोगों के पास नए नए आइडियाज़ भी पहुंचने लगे, साथ में ही गुड्स के. नो डाउट हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं शुरुआत से कॉटन के. जो बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन इंडिया में ग्रो करता था. नॉट ओनली कॉटन, देयर वर ऑल्सो अदर कमोडिटीज़ विच वर सोल्ड, जैसे मसलिन क्लॉथ था, सिल्क था, स्पाइसेस थे, एंड मोर ओवर देयर वॉज अदर डाइड क्लॉथ्स ऑल्सो विच वर यूज्ड फॉर रेफरिंग हियर. हम ना सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल को ही एक्सपोर्ट करते थे, मसलिन भी एक वैरायटी ऑफ क्लॉथ था, स्पाइसेस ऑब्वियसली मसाले, प्लस वॉट एवर वी यूज टू प्रोड्यूस हियर वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़. वो सारी चीज़ें ब्रिटेन में जाती थी, ब्रिटेन में जाने के बाद वहीं पर फिनिश्ड गुड बनकर वही चीज़ें हमारे पास लौट कर आती थी, हमारे ही मार्केट में बिकने के लिए. ठीक है, हमारे पास और भी इस चीज़ को लेकर एग्जाम्पल्स हैं. प्लस उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने आने के बाद फर्स्ट यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो सेटअप करी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी. जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करी गई तो व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड मेकिंग पपेट रूलर्स. उस टाइम पर भारत में नवाबों का रूल हुआ करता था. नवाबों का रूल ऐसा था कि When ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, उससे पहले मुगल्स का इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया में मिडेवल टाइम पर. तो जिस टाइम पर मुगल्स का इन्फ्लुएंस था तो वहाँ पर डिवीज़न जो था पूरे इंडिया का वो प्रोविंसेस के बेसिस पर था. तो जब प्रोविंसेस रूल होते थे तो प्रोविंसेस हमेशा नवाब्स रूल करते थे. नाउ द नेम, एज द नेम सजेस्ट, कि नवाब्स जो थे वो बहुत रॉयल प्रिंस हुआ करते थे, बहुत अमीर घराने के राजा रूल किया करते थे. सो व्हेन दे केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स, व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर 1600, what they did were they came here with a special permission granted by the queen कि हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं. लेटर डिड दे रियलाइज दैट ट्रेड करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा इफ़ वी मेक दिस कंट्री एज द कॉलोनी. वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की बात थी. सो व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग अस, दे डिवाइडेड दीज प्रोविंसेस इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्टली देयर वर 2 काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विच वर रूल्ड. पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो रूल करी जाती थी वो थी बाय प्रिंसली स्टेट्स, जिनको अनडिस्टर्ब्ड रहने दिया गया था, विच वर रूल्ड बाय द किंग्स. द अदर वर प्रोविंसेस विच वर रूल्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेशन में रूल करते थे और उनको उन्हीं के ऑफिशियल्स गवर्न करने का काम करते थे. सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ डिविजन बाय विच दे यूज टू रूल अस.
ये उनका डिवीजन था जिस तरीके से वो रूल करते थे। और एक सिंपल सा फैक्ट और एक सिंपल सा रीज़न उन्होंने ये दिया था कि हमने डिवीजन इसलिए किया है सो दैट वी हैव बेटर इफेक्टिव मेथड्स बाय विच वी कैन रूल पीपल। हम लोग सब जगह पर एक टाइम पर मौजूद नहीं हो सकते, प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो हमें ऐसी टेक्निक्स, हमें ऐसे मेथड्स डिवाइस करने पड़ेंगे जिससे कि बेटर और इफेक्टिव रूलिंग हो सके। तो उन्होंने जब ये रीज़न दिया कि वाई हैव यू डिवाइडेड इंडिया इनटू फर्दर मोर पार्ट्स, दे हैड गिवन दिस रीज़न दैट वी वांटेड टू रूल इंडिया इफेक्टिवली, दैट्स व्हाई वी हैड डिवाइडेड इट, right? So we had very good connections, we had made very good connections through waterways by connecting India with the world. And another development that facilitated this more was third, अगर हम बाद में एयर रूट्स की बात करें तो मेजरली सारे ही एयर रूट्स इंडिया के भारत से होकर गुजरते हैं। सो वी ऑल्सो हैव क्लोज कनेक्शन विथ एयर रूट्स connecting major continents. Alright, moving on further, अगर हम आगे चलें तो जब हम वर्ल्ड के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी देख लेते हैं, वी ऑल्सो नीड टू लुक एट हमारे पास नेबर्स कैसे हैं, हमारे नेबर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन से डायरेक्शन में हम कौन से नेबर के थ्रू बाउंड हैं। सो इफ़ वी मूव ऑन फर्दर, अगर हम इंडिया के नेबर्स को देखें तो हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं हमारे पास सबसे पहले अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में हमारे दो नेबर्स हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अगर हम हमारी ईस्टर्न एक्सटेंट की बात करें तो हमारे पास ईस्टर्न साइड पर जो नेबर्स हैं वो हैं बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें, ओनली नॉर्थ, सो वी हैव चाइना, नेपाल एंड भूटान। और अगर हम साउथ की बात करें, साउथ डायरेक्शन, सो इन द साउथ वी आर वेरी क्लोज टू अ नेबरिंग कंट्री दैट इज श्रीलंका। और अगर हम श्रीलंका का इंडिया से सेपरेशन देखें, अगर हम मैप में देखें तो इंडिया का श्रीलंका से सेपरेशन एक बहुत नैरो चैनल के थ्रू सेपरेशन है, दैट इज दिस नैरो सेपरेशन विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इज पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास आइलैंड ग्रुप्स में दोनों तरफ आइलैंड्स हैं। वी हैव आइलैंड ग्रुप इन द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो एंड वी हैव आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी ऑल्सो, राइट। अगर हम इस आइलैंड ग्रुप के डिवीजन की बात करें तो लक्षद्वीप जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो बेसिकली कोरल ओरिजिन का आइलैंड है और लक्षद्वीप को एक नैरो चैनल सेपरेट करता है फ्रॉम मालदीव्स, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो लक्षद्वीप हमारे आइलैंड ग्रुप है वो भी हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वेस्टर्न साइड पर लाई करता है, प्लस उसको सेपरेट मालदीव से सेपरेट किया गया है बाय गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो लिंक है, ये लिंक इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। प्लस हमारे पास तीसरी वाटर बॉडी जिससे हम सराउंडेड हैं, वो तीसरी वाटर बॉडी है इंडियन ओशन। तो जब हम इंडियन ओशन की बात करते तो उसका नाम हमारी कंट्री के ऊपर क्यों गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट वो बिल्कुल अहेड या फिर बिल्कुल हमारी कंट्री के ऊपर लाए करता है। प्लस
इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट. इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है. वाई इज इट कॉल्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट? यू मे बी गिवन अ क्वेश्चन. द रीजन इज दैट आप जब भी किसी प्लेस को एक कॉन्टिनेंट बोलते हो तो वी ऑलवेज लुक फॉर 6 फिजिकल फीचर्स विच आर प्रेजेंट एट एनी प्लेस. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ये 6 के 6 फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है. फर्स्ट, वी हैव माउंटेन्स. सेकेंड, वी हैव प्लेन्स. थर्ड, we have desert. Fourth, we have coastal plains. Fifth, we have plateau region. And sixth, we have group of islands. So these are all the 6 physical features which are required for making a country a subcontinent. And the reason is that India occupies this favorable place with respect to a subcontinent region is because of presence of these 6 physical features. So ending the chapter, we have already completed India size and location. We will be back with another chapter that we will cover in the next class. Thank you so much.